Wellesley converted the British Empire in India into the British Empire of India. So this is purely about how he was able to enlarge the scope of overall British. And so Lord Wellesley, he arrived in 1798, lived here till 1805. And these years, the same years, we see the rise of Napoleon. And as a result of the French threat, he got the justification for fighting his wars and battles. Alright. So at the time when the company still faced challenges from Maratha, Mysore and Tipu Sultan and the in-transit Nawabs of Awadh and Nizams of Hyderabad. So what did he do? Like number one, allied with Marathas in Hyderabad to finish the challenge of Tipu Sultan during the 4th Anglo-Mysore War. Very astute person he was. Where he signed the subsidy alliance treaty with Hyderabad and later on with Awadh. So that was also taken care of. Thereafter the subsidy alliance treaty was signed. So यहाँ पे थोड़ा सा डेट का issue है 31 December 1802 and hence became the de jure political power in Western and Peninsular Treaty of Bassein. Defeated the Maratha in the 3rd and then eventually even captured Delhi by 1803 and Mughal emperor accepted the British protection. Challenges, but still there were certain challenges. It's not like that the Wellesley was able to ensure everything, the whole empire was created. No, the later governor generals also played a part in it. So you have to talk about Holkars. Ranjit Singh had set up a powerful empire in the Sikh, Sindh, Afghanistan, Indo-Burma region. So in a way, it was not just him. Even though he increased the dominion, he was the one who revolutionized the psyche of the British, and they had to eventually give up the policy of ring fence. But finally here we have to recognize the role of Lord Hastings, who finally defeated the Marathas. We have to understand the role of Bentinck as well as later on the most powerful imperialist, Lord Dalhousie, who was able to conquer Burma, who was able to come with doctrine of lapse, occupied Punjab. In between also Lord Ellenborough, they were able to capture Sindh. Hi, so welcome to Prep Career. Today I am going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी dedicate कर सकते हैं, right? So during this time, when you have a lot of time, उसको अच्छे से यूटिलाइज किस तरीके से करें. दिस इज वेयर डॉन कम्स इन. डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पे रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए. बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते. कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते. दिस इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर. इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th. ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड. तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे. मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि हम शेड्यूल में क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो. ठीक है, एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो. सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट 4 months, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. व्हाट शुड बी दी अप्रोच. तो अप्रोच बहुत सिंपल है. अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ एंड देन ऑन डेली बेसिस यू राइट फ्यू आंसर्स. हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे. एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो, उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है. हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 day. जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली, कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो. और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस. ठीक है, तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है. फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें. राइट, दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है. जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंड आउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें. दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग. प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे. देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना. यू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल. देन ऑल्सो द कवरेज इज गोइंग टू बी मैसिव. पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे. दिस इज
roughly the UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025 तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे, 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेल्युएट होकर कॉपीज़ मिल जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑलराइट। एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर। एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं जिसमें हम हिस्टोरियन, बहुत बच्चों को हिस्टोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है। सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। अब देखो हमने क्या किया है कि रफली 20 एक दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है। इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 22, 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं, तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए। वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए, बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं जीएस में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए। देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4, तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाए, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रेकमेंड अ फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए, ओके उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन्ड कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself you will be able to finish off this batch. All right, so all the very best, thank you so much। इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।